Arteries differ from vein in having arteries consist of distinct layers which are thin and collapsible, whereas vein consist of three distinct layers which are rigid, thicker and highly vascular. गलत. आर्टरीज की ल्यूमेन मोटी होती है, नहीं ल्यूमेन पतली होती है, वॉल मोटी होती है. वेन कंसिस्ट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेयर विच आर थिन कोलैप्सेबल, वेयरएज आर्टरी कंसिस्ट ऑफ थ्री distinct layer which are rigid, thicker and highly vascular. Yes. Find out the incorrect statement. Blue-green algae is a prokaryotic cell. Blue-green algae is a prokaryotic cell. Yes, it is a prokaryotic cell. WBC is amoeboidal in shape. Yes. Mycoplasma is the largest cell. No. Ostrich egg होता है. और microbodies are cell organelle. Yes, they are the ribosomes. Prokaryote do not exhibit a wide variety of shape. गलत. they exhibit वो शो करते हैं. तो हमारे पास पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है हमारे पास 3 और 5. Read the following statement about the human heart. The SA node is a specialized mass of cardiac tissue present in the lower left corner of the right atrium close to the AV septum. गलत. वो AV node होता है, AV node. The body has the ability to alter the heart rate, cardiac output, but not नहीं स्ट्रोक वॉल्यूम को भी अल्टर कर सकता है. एंड द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, बट नॉट स्ट्रोक वॉल्यूम. तो गलत. द एंड ऑफ द टी वेव इन ईसीजी मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल. यस. सो पूछा है करेक्ट हो जाएगा 1. जॉर्ज प्राडे ऑब्जर्व ग्रेनुलर स्ट्रक्चर under electron microscope which is composed of RNA and protein. Select non-incorrect statement. Non-incorrect means correct. Non-incorrect means correct. Not incorrect means correct. Diplotin stage is not recognized by the dissolution of synaptomal complex. गलत. Recombinase nodule. Okay, sorry. Recombination nodule contain recombinase enzyme. Yes. In anaphase 2, separation of homologous chromosome occur. No. Interkinesis is generally short-lived. Yes. Not incorrect means correct. तो दूसरा और चौथा करेक्ट है. Which one of the following statement is not for most common type of nephron of human kidney? They are small. Which one of the following statement is not correct for most common type of nephron of human kidney? They are small size, less coiled, with major part present at the junction of the cortex and medulla. No. Major part होता है cortex में. They are short length of है ना. They have sorry. They have short length of loop of Henle. Yes. They do not have major role to form countercurrent mechanism. Yes. Okay. They have no role. They have no or highly reduced vasa recta. Yes. They have highly reduced vasa recta. They have highly reduced vasa recta. इनकी vasa recta जो होती है वो highly reduce होती है. मैंने बोला cortical nephron भी बोलते हैं इनको. इन जो bulk major जो nephron होते हैं वो cortical nephron ही होते हैं. So the answer is this. क्योंकि ये junction में नहीं पाते, ये cortex में पाते हैं. Every chromosome essentially has a primary constriction और centromere. confuse होने के लिए centrosome, centromere, क्रोमोसेंटर है ना, सब दे देंगे. तो सेंट्रोमियर एंड ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज काइनेटोकोड्स आर प्रेजेंट. ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एंजाइम नोन एज एंटेरोकाइनेस. ठीक है. तो सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. तो एनसीईआरटी के लिए सिंपल है सर. तो ये जो ट्रिप्सिन होगी फिर बाकी सबको एक्टिवेट कर देगी है ना. तो अ सेल डिवाइड व्हेन इट्स कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स. जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा. कंफ्यूज होता है लोग. ज्यादा कि कम. 4 ऑप्शन गेम नहीं, 2 ऑप्शन गेम है. ज्यादा कि कम. तो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा. कॉन्सेप्ट समझते हैं. हमने बोला कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स. कैरियो साइटोप्लाज्मिक मतलब कैरियो अपॉन साइटो. कैरियो का क्या वॉल्यूम अपॉन साइटो का वॉल्यूम. अगर साइटो का वॉल्यूम बढ़ जाएगा
तो वो न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। साइटो का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा, अगर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा, इसको ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो सब जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो जाता है तो वो डिवाइड कर जाता है। द fifth thoracic vertebra is the region of spinal column inferior to the sacral vertebrae. No, the region of the spinal column, sorry, the region of the spinal column superior to the cervical vertebrae of the neck. No, at the same level, yes, as the sternum angle, sternum के just नीचे इस पे क्या होता है, स्प्लिट होता है T5 पे, है ना, ट्रैकिया। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये जो है किसका स्ट्रक्चर है, ओके, न्यूक्लियोइड देखने को मिला तो ब्राउन एल्गी नहीं होगा, रेड एल्गी नहीं होगा, ग्रीन एल्गी नहीं होगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। ब्लू एल्गी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच द पार्मिटिक एंड आर्चिडोनिक एसिड कंटेन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज पार्मिटिक में 16 और आर्चिडोनिक बड़ा है तो सिर्फ एनसीईआरटी में तो 16 दिए, 20 दिए, तो 16 वाला याद रखना, 20 वाला याद रखना। तो 16 पार्मिटिक, 16 कम है तो पार्मिटिक जो होगा, है ना, पार्मिटिक जो होगा वो 16 वाला, आर्चिडोनिक इंक्लूडिंग, याद रखना, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे अगर ये आई को ई कर देता तो फिर आंसर चेंज होने में समय नहीं लगता, 15-19 हो जाता। Identify the labeling I2-3 in the hemoglobin oxygen dissociation curve. Identify the labeling 1-2-3 in the hemoglobin oxygen dissociation curve. ठीक है, तो हमारे पास सर यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दे दिया। स्लोप देखेंगे, स्लोप ज्यादा हुआ मतलब क्या करेंगे, बाइंडिंग ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे मैं बात करूंगा 1 और 3 में स्लोप कम है तो बाइंडिंग कम होगी, 2 में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे बोला है, ये बोला डिफिकल्ट, इजी, डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट, इजी, वेरी डिफिकल्ट बोल रहा है, डिफिकल्ट, इजी, वेरी डिफिकल्ट, इजी नहीं, ओके, डिफिकल्ट, नो, डिफिकल्ट टू बाइंड, इजी टू बाइंड एंड वेरी डिफिकल्ट। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिफिकल्ट टू बाइंड, इजी टू बाइंड एंड वेरी डिफिकल्ट टू बाइंड, डिफिकल्ट टू बाइंड, इजी टू बाइंड एंड वेरी डिफिकल्ट टू बाइंड, या 1 और 3, सॉरी, ये थर्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल रहा है, यहाँ पे 1 2 3 ऑर्डर दिया, वहां पे, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ये सही है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एन लेफ्ट में एन टर्माइन, लेफ्ट में एन टर्माइन, लेफ्ट में एन टर्माइन, तो लेफ्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड एन टर्माइन, है ना, लेफ्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड एन टर्माइन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोनेशन, है ना, connection are not true about the special creation theory of origin of life. All living organisms that we see today we were created as such, yes, and earth is about 4,000 year old, yes, and there has been gradual evolution of life from, no, diversity was always the same since creation and will remain same in future, yes। तो ये गलत हो गया है। There are following, sorry, 3 of the following statement about enzyme are correct, 1 is wrong. The wrong option is high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat. Yes, enzyme are denatured at high temperature, but in certain exceptional organism they are effective even at high temperature or at the temperature from 80 to 90 degrees Celsius. Enzymes lower the activation energy and hasten the enzyme catalyzed reaction. Yes, most of the enzyme are active intracellular only and get inactive under extracellular condition. नहीं, अंदर में भी एक्टिव होते हैं, बाहर में भी एक्टिव होते हैं। Find the correct match in the following. Virus are smaller in size ranging from 20 to 400 nanometer and bacteria is larger in size around, है ना, यही हो सकता है, लेकिन पढ़ लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम 20 बिलियन ईयर एगो, अरे ओरिजिन तो यूनिवर्स का 20 बिलियन ईयर एगो। फाउंडर इफेक्ट ऑपरेटिंग लार्ज नहीं सर, स्मॉल पॉपुलेशन एंड डीप वेन्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस, डीप नाम इसी है कि डीप में चला जाता है ये, ठीक है सर, बिल्कुल, ओके। विच द फॉलोइंग प्लांट सेल सो टोटीपोटेंसी, जितने भी तो परमानेंट हो गए, छोड़ो, कॉर्क वाला परमानेंट है, ओके, जाइलम परमानेंट हो गया, सिप ट्यूब परमानेंट हो गया, तो मेरिस्टेमेटिक एंड जाइगोट एंड स्पोर। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बर्ड डाइवर्सिटी। बर्ड डाइवर्सिटी टॉपिक्स में ज्यादा टॉपिक सबसे कौन, कोलंबिया 1400 के आसपास,
देन कोलंबिया के बाद सबसे ज़्यादा कोलंबिया, एंड देन कोलंबिया के बाद है इंडिया, इंडिया के बाद है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद है ग्रीनलैंड, सबसे बर्फीली जगह, और ग्रीनलैंड हो जाएगा तीसरा नंबर पे। तो फोर मैक्सिमम एंड 3 मिनिमम, 4 मैक्सिमम 3 मिनिमम। ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ 2। होमो हैबिलिस एक्सीलेंट केम पेंटिंग बरीड देयर डेड विथ फ्लावर ब्रेन साइज अराउंड 900 फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। होमो हैबिलिस फर्स्ट होमोनिड, हैबिलिस मतलब होमिनिड, इसी का मीनिंग होता है। ए का वन दो ऑप्शन में है। ओके, होमो इरेक्टस ब्रेन साइज अराउंड 900 cc centimeter cube. Which of the following set of animal are triploblastic, true coelomates with open type of circulatory system, है ना। तो लीच होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेप्शन है एनिलिडा का, लीच में होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अर्थवर्म नहीं सर, ऑक्टोपस नहीं सर, सिफेलोपोडा में नहीं होता है, सिफेलोपोडा में क्लोज होता है, तो ये गलत। मॉस्किटो पेरिटिमा एंड नेरिस, ये गलत। कॉकरोच लीच एंड पाइला एप्पल स्नेल विथ व्हाट क्रॉस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूल बोले तो एमडी याद रखना, एमडी मतलब एमडी इनटू फीमेल हॉर्स। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोम्स? ऑल लिविंग मेंबर आर एंडो नहीं, एक्टोपैरासाइट गलत। दे हैव एनलॉन्गेटेड, हमको पूछा है करेक्ट। ओके, दे हैव एलॉन्गेटेड बॉडी बियरिंग टू पेयर ऑफ गिल स्लिट नहीं, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ये गलत हो गया। They have a sucking and circular mouth without jaw. Yes. Which of the following is broadly utilitarian reason for the conservation of biodiversity? Human derive direct economic benefit from nature. नैरो मतलब सोच छोटी है, अपने काम के लिए। Human derive direct economic benefit from nature. Many drugs are derived from plant. Medicinally useful plant are present in tropical forest. Yes. Many insect pollinate the plant. It is narrowly utilitarian. Which of the following contraceptive method has high rate of failure? Periodic abstinence. Which metal inactivate a catalytic converter lead? इसे तो लीड की क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं हम लोग। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट, वहाँ पे हमने जो ऑर्गेनिज्म जिसको डाला है, सॉरी जो स्टेज जिसको डाला है, वहाँ पे हमको एक ब्लास्टोसिल देखने को मिला, मतलब ये ब्लास्टोमियर है, क्योंकि बाकी सब में कैविटी देखने को मिलती नहीं। तो ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर टू द यूटेरस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। हाँ, मेरे द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। गुड ओजोन इज फाउंड इन द स्टेटोस्फियर। गुड ओजोन कहाँ पाया जाएगा? स्टेटोस्फियर। और बैड ओजोन ट्रोपोस्फियर। तो ये सही, पहला स्टेटमेंट सही है। यूवी रेडिएशन हैविंग लोअर वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा देन यूवीबी इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सॉर्ब, दैट इज, है ना, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब यूवी से की वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए हमको बचा रहा है। ठीक है ना, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। यूवीबी UVB cause no blindness and cataract. UVB, no blindness. DB is a unit, है ना, सही है। देख लेंगे बाद में, देख लेंगे यार। UVB is a unit, यार इसमें कंफ्यूजन लगा, थर्ड ऑप्शन में देखते हैं सब बाद में, है ना। तो DB इज अ यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। यस, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ना 3 में 4 होगा। रिव्यू लेटर अंडर फेवरेबल कंडीशन सोमेटिक सेल स्टोर्ड फूड मटेरियल विच बिकम थिक वॉल देखते ही हमने बोला एकाइनेट रिड्यूसिंग शुगर, माला आर माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग डायसैकेराइड। गैलेक्टोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड तो रिड्यूसिंग होते हैं, गैलेक्टोज भी रिड्यूसिंग होगा। तो ग्लूकोज सुक्रोज है ना, सेलुलोज है तो सर पॉलीमर है, पॉलीमर की जो टर्मिनल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग होती हैं। तो फॉलोइंग ग्राफ शो द रेंज ऑफ वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन मेंबर फॉर अ ट्रेट डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन। In this population
if this population, sorry, if this population is subjected to stabilizing selection for several generation, stabilizing में मतलब दोनों मीन कैरेक्टर को, दोनों को मीन कैरेक्टर बढ़ाते जाएंगे और दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर को हटाते जाएंगे, which of the distribution is most likely to result, and it will be stabilizing, peak get higher and narrower. All the event of menstruation cycle stop and there is no menstruation during pregnancy. It is due to negative feedback of progesterone. पहले तो प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम निकाल रहे, बाद में प्लासेंटा निकाल रहे, जिसकी वजह से एफएसएच और एच को नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, और नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच और एच कम होगा, एफएसएच और एलएच कम होगा तो एलएच सर्च नहीं हो पाया और ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जूप्लैंक्टॉन्स स्पीसीज इन द लेक एंड द पॉन्ड आर नोन टू एंटर फेज known as diapause. pause होगा थोड़ी देर के लिए. read the statement given below. The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. yes, movement 5th month. ठीक है, movement 5 महीने में 5 फर्स्ट 5 लिखते हैं ना यार, मैं ऐसे देता हूँ 5 फर्स्ट मूवमेंट, 5 फर्स्ट मूवमेंट, F5 फर्स्ट मूवमेंट. The next second statement. ठीक है सर. The structural and the functional unit between the developing embryo and the maternal blood is the umbilical cord. नहीं, placenta is the structural and functional unit. ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है. और है ना, at puberty in female both, नहीं, each ovaries contain about 60,000 to 80,000 primary follicle, तो ये हो जाएगा गलत. तो हमारे पास बोला है the correct statement from the above is only one. A place which used to be rocky and barren has now turned into a lush green forest. The plant succession of the area is सबसे पहले lichen के बाद moss के बाद herbs के बाद shrubs. ठीक है ना, herbs छोटे, shrubs बड़े. Which one of the following pair of reproductive organ does not show homology between male and female? Glans, penis and clitoris, yes. Scrotum and labia minora, no. Scrotum and labia majora जो होते हैं वो homology show करते हैं. In a pond ecosystem, the shape of the pyramid ऑफ नंबर सबसे ज्यादा कौन होगा? जूप्लैंक्टॉन्स होंगे? नहीं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे, फिर जूप्लैंक्टॉन्स होंगे, उससे कम होंगे कौन? स्मॉल फिश, उससे भी कम होंगे लार्ज फिश. तो ये अपराइट होगा, पिरामिड ऑफ नंबर. बायोमास का पिरामिड है ना, ये इसको पूछा जाता है. बायोमास का पिरामिड होता है इन्वर्टेड, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टॉन बहुत ज्यादा है लेकिन उनका मास बहुत कम है यार. अ मैन इज सफरिंग इन्वर्टेड, या फिर स्पिंडल बोल सकते हैं, ऑप्शन देखना पड़ेगा. अ मैन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसीज विच इंक्लूड सिम्टम लाइक चिल, फीवर एंड कफ. ऑन close inspection it is found his fingernail has turned blue मतलब blue characteristic feature of pneumonia. An x-ray of his lungs show an accumulation of fluid in them. Which of the following pathogen is the causative agent for this disease? Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae is the causative agent for pneumonia. Consider the following statement concerning food chain. Removal of 80% tiger from an area resulted in gently increased growth of vegetation. Removal of 80% टाइगर को निकाल देने के बाद जो डियर की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी. इफ देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द डियर देन द वेजिटेशन विल डिक्रीज. तो ये गलत हो गया. In a grassland ecosystem with deer being primary consumer, removal of most of the carnivore resulted in an increased population of deer. In a grassland ecosystem with deer being primary consumer, है ना, एक grassland ecosystem की बात करते हैं जिसमें deer primary consumer है, ओके, है ना. Removal of most of the carnivore result in an increased population of deer, yes. Okay, the length of the food chain is generally limited to 3 to 4 trophic level due to energy loss. Yes. Okay, the length of the food chain may vary from 2 to 8. यार ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत. Okay, so हमने बोला which of the following which two of the above statement are correct? So second and third correct है. Okay, next, which of the following is correct order? Okay, which of the following is correct option
for decreasing order of concentration of different type of antibodies which are produced in our body। सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी गम दे, इसका ऑर्डर होता है गम दे, GAM, जी का सबसे ज्यादा है ना, जी मतलब ज्यादा, जी का कंसंट्रेशन ज्यादा, GAMDE है ना, गम दे। तो GIG सबसे ज्यादा, फिर IAA, फिर IAM और फिर D, फिर E। ओके, सोलन प्लासेंटा विथ मैनी ओव्यूल्स इज प्रेजेंट इन। सोलन प्लासेंटा कहाँ पे देखने को मिलेगा? सोलन प्लासेंटा देखने को मिलेगा सोलेनेसी में, है ना। सोलन प्लासेंटा एंड ऑब्लिक सेप्टा, एनसीईआरटी की लाइन यही बोलती है, सोलन प्लासेंटा एंड ऑब्लिक सेप्टा आर सीन इन द फैमिली सोलेनेसी। तो चिली इज द मेंबर ऑफ सोलेनेसी, एलोवेरा तो है लिलिएसी, और ट्यूलिप है लिलिएसी, मुलेटी हो जाएगा इंडिगो फेरा, सॉरी इंडिगो फेरा मुलेटी विच है। तो आने वाला फेबेसी। फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। कैंसर, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इट इज सेट फॉर एड्स, ये गलत हो गया है ना। तो कोकिन कॉल्ड एज कोकिन कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड, यस, इसको स्नॉट किया जाता है, नाक से लिया जाता है। ओके, चरस, बाइंड टू है ना कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ऑफ CNS एंड GI ट्रैक्ट, यस। कैनाबिनाइड जो होते हैं, सॉरी चरस, या फिर हमने बात की मॉर्फिन की, तो वो क्या करते हैं CNS और GI के ट्रैक्ट के साथ बाइंड करते हैं, तो ये सही है। सो ये गलत हो गया, एक सही दो सही, ठीक है। स्मोकिंग कस है ना, स्मोकिंग कस कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नहीं, स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है ट्रॉट का, है ना, बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, हेपेटाइटिस बी इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये भी सही है। तो हमको पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। Which of the following is not correct with respect to a part of the family? Which of the following is not correct with respect to a part of the flower and its function? Sepal are green-like structure which protect the flower of after opening। नहीं, सेपल जो होते हैं उसको ना नॉट करेक्ट बोले तो नॉट करेक्ट पूछा है, गलत है बिल्कुल। सेपल जो होते हैं उसको बड स्टेज में है ना, बिफोर ओपनिंग उसको बचाते हैं, आफ्टर ओपनिंग नहीं बचाते, है ना। स्टेमिनोड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, स्टेमिनोड पोलन ग्रेन नहीं बनाएंगे, स्टेमिनोड तो स्टेराइल स्टेमिन होते हैं, तो पोलन ग्रेन नहीं बनाते। ओके, नेक्स्ट। ओके, द 4 sketches ABCD given below represent 4 different type of animal tissue. Which one of these are correctly identified in the option given along विथ इट करेक्ट लोकेशन एंड फंक्शन? तो हमारे पास बात करेंगे ना, ए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में पाया जाएगा और इसका रोल होता है सिक्रीशन, बिल्कुल सही। दूसरे देख लेते हैं, कोलेजिन कार्टिलेज, नहीं, कोलेजिन कार्टिलेज नहीं। ओके, हमने बोला स्मूथ मसल टिश्यू, हार्ट नहीं, कार्डियक मसल होता है। ओके, और कोलमनार एपिथेलियम नेफ्रॉन नहीं, क्यूबटर होता है, गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही, बाकी सब गलत। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, हमको इनकरेक्ट बताना है। इंडिगो फेरा दैट बिलोंग्स टू द फैमिली फेबेसी। ओके, इंडिगो फेरा सेपल्स कितने हैं? 5। ओके, गैमोसेपलस मतलब फ्यूज होंगे, ये करेक्ट है। कोरोला वैक्सीन सही है। ब्रिंजल सेपल्स 5 ब्रिंजल सेपल्स 5 यूनाइटेड। ओके, एस्परागस लिलिएसी फैमिली का है ना। सेपल्स थ्रो ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, दैट इज वेलवेट, है ना, नहीं। कोल्चीसिन, ओके, पेरियंथ प्रेजेंट टेपल 6 होंगे, टेपल मतलब तो कोरोला, और हमारे पास सेपल्स फ्यूज हो चुके हैं ना, पेटल्स और सेपल्स फ्यूज हो चुके हैं, क्या बना दिया इसने? पेरियंथ बना दिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड स्ट्रक्चर डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन इन द पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, दैट इज कॉकरोच में एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यूरिकोस ग्लैंड, माइलफिंजन ट्यूब्यूल, दैट जिसका नंबर होता है 100 से 150, 100 to 150, है ना। और फैट बॉडीज दे पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन बट फेलिक ग्लैंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन, इट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ओके, मार्जिनल प्लासेंटेशन फाउंड इन पी, पहला A का 1 खत्म। Plasma membrane of Bess is known as sarcolemma term used for muscle fiber कोई मायो मसल जैसे किडनी के लिए तो मायो मसल के लिए। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑब्जर्व्ड इन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, बोथ 1 and 2, है ना। रीड द स्टेटमेंट। सूचर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट बिटवीन क्रेनियल बोन मतलब बिटवीन जो क्रेनियम है हमारा, जो खोपड़ी के जो बीच के जॉइंट्स हैं उसको बोलेंगे सर सूचर्स जो होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। ओके, सो इट इज करेक्ट। ओके, माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसीज, यस, जो कि किसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करेगी। एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड अगेंस्ट, ओके, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स। ओके,
Okay, tetany result in rapid spasm and wild contraction in nerve. No, nerve नहीं सर, मसल में होगा, contraction मसल में होगा, तो ये गलत हो गया. Accumulation of uric acid crystal in the joint is called as gouty. Yes, it is also correct. तो false पूछा तो ये गलत हो गया हमारे पास. At the stage of generation of action potential the exolemma is, exolemma क्या होगा, पोलराइज, मतलब बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव, Na प्लस बाहर में ज्यादा होंगे इसीलिए पॉजिटिव होगा, अंदर में क्या है K प्लस, और K प्लस ज्यादा नहीं है सर, A माइनस, मतलब प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटीन्स आर मोर, सो द है ना इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज एंड आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, ये सही है. ओके, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज गैमेटोफाइट, ये गलत है. Select the incorrect statement. Afferent neuron carry impulse from CNS to peripheral nervous system. जो efferent होगा वो लाएगा, efferent जो होगा लाएगा impulse को CNS से peripheral tissue तक. बिल्कुल सही statement है. Next, okay, granular bodies are found in granular bodies are found in cytone and neuron. Granular body, cytone and neuron भी सही लग रहा है. यूनिपोलर न्यूरॉन हैज ओनली वन डेंड्राइट, नहीं, यूनिपोलर न्यूरॉन के पास एक एक्सॉन होगा, है ना, यूनिपोलर न्यूरॉन के पास एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट नहीं, नहीं 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 हो सकता. ड्यूरा मैटर इज इन कॉन्टेक्ट विद द क्रेनियम, PAD, अंदर P फिर A फिर D, P मतलब पाया मैटर जो होगा सीक्रेट करेगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ओके, फैमिली सोलेनेसियन कॉन्वोल्वुलोसी बिलोंग टू द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स, दोनों बिलोंग करते हैं पॉलिनोमियल से. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द किडनी, किडनी में इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन वासोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब यूरिसिस को, डायूरिसिस कम करेगा, यूरिन बाहर जाने नहीं देगा, पहले तो ये आयन खींचेगा फिर पानी खींच लेगा. Carbon skeleton produced during respiration is used as a precursor for biosynthesis of other molecule in the cell. Thus, respiration is an amphibolic process, क्योंकि उसमें टूटना भी होता है, जोड़ना भी होता है. So, respiration is mainly an एम्फीबोलिक प्रोसेस. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. एडिनल कॉर्टेक्स जो होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकालेगा, ये सही है, क्योंकि GFR यहाँ पे बाहर की तरफ से GFR, बाहर में क्या हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बाहर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ओके, देन पैराथायराइड ग्लैंड में 4 पैराथायराइड ग्लैंड 4 होंगे, पीछे की तरफ होंगे, डॉर्सल साइड में होंगे थायराइड ग्लैंड के. ओके, है ना, हाइपोथायराइडिज्म से क्रिएटिनिज्म हो जाएगा. थायमोसिन इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन. How many molecules of carbon dioxide will be produced if 2 molecule of acetyl CoA is acetyl coenzyme A is completely oxidized in an aerobic respiration. जब एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 2 CO2, और 2 बार जब क्रेब्स साइकिल चलाना पड़ेगा तो मतलब हमारे पास एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल 2 हैं, तो हमारे पास 4 कार्बन मिलेंगे टोटल. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कार से सफलता तक, ठीक है सर, बिल्कुल. तो Na संस्कार से सफलता तक बोल रहा है. Na हो जाएगा, सिलीनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, तक कोबाल्ट हो जाएगा, है ना, संस्कार से सफलता तक को, है ना, सोडियम संस्कार से सिलिकॉन, सफलता से को, ये हो जाएगा हमारे पास क्या. ओके, इट इज बेनिफिशियल एलिमेंट. ओके, विच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रेजेंट ऑल बेनिफिशियल एलिमेंट, दिस आर द 4 बेनिफिशियल एलिमेंट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंसुलिन बोला, इन्यूलिन नहीं बोला. ओके, इन्यूलिन बोलता तो हमने बोलता था यार पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. ओके, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रेजेंट इन अ पेनक्रियाटिक जूस, नहीं, इंसुलिन जो होता है पेनक्रियाटिक जूस में नहीं होता, खत्म. पैराथायराइड हार्मोन, ओके, और पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन, अपोजिट होते हैं, तो ये हो जाएगा गलत. जोना ग्लोमेरुलोसा फॉर्म द इनर लेयर ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होगा वो इनर नहीं सर, ये बाहर वाला बनाएगा. GFR ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस. ओके, सो ग्लोमेरुलोसा बाहर में होगा, कॉर्टेक्स की तरफ होगा, है ना, द आउटर मोस्ट लेयर नॉट इनर मोस्ट. तो पहला सही है क्या, बिल्कुल गलत है, पहला गलत, दूसरा पैराथोरन सही, तीसरा गलत. करेक्ट बोला है 1. स्टोमेटा विच ओपन अप इन नाइट एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम. सो जो स्टोमेटा रात को खुले होंगे दिन में बंद होंगे, हमने बोला उसको क्या बोलेंगे, कैम, कार्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे में चलेगा, ऐसा वाला. C4 में नहीं होता, C4 में तो दिन में खुले होते हैं, रात में बंद होते हैं ना, तो क्योंकि वहां पे बंडल से चल. ओके, बिल्कुल वहां पे खेम खत्म पड़ गया. क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया में सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल नहीं मिलेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है. मेनली हेटेरोट्रॉप्स. ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर इन. फर्स्ट जो मेम्ब्रेन
इंपॉर्टेंट होता है। चम्मच पे मिठाई, चम्मच पे मिठाई, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम जो इनिशियल होंगे उन्हीं में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, है ना। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। और देखो सर बात देखिए, ज़्यादातर दिमाग लगाना पड़े तो देखो वही क्वेश्चन ऑप्शन जिसमें दोनों सेम मिले, यहाँ पे ग्रेना और स्ट्रोमा, बस इन दोनों में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम दोनों में तो ज़्यादा सही होने के चांसेस इनके होते हैं। एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन चूज करता है। ओके, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। स्टोमा मतलब जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एंजाइम्स होंगे उसको स्टोमा बोलेंगे। और ठीक है सर, यहाँ पे एंजाइम्स होंगे और एंजाइम्स होंगे वहीं पे तो क्या चलेगा, फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन, ओके, ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर इन द स्टोमा, ओके, इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम की स्टोमा में क्या हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पायरेशन की रिएक्शंस चलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। एब्सिसिक एसिड यस, स्टोमेटा क्लोज करेगा। एडवर्स कंडीशन में, मतलब तो ड्रॉट की कंडीशन में, जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल, बिल्कुल, है ना। तो हमको पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो जिब्रेलिक एसिड लीफ को फॉल करेगा, कि लीफ को रोकेगा यार, इसीलिए तो हमने बोलता है इसको छिड़कते हैं। मार्केट प्राइस इंक्रीज करने के लिए एप्पल का अमाउंट को, है ना, एप्पल की जो है ना, एप्पल का मौसम आया नहीं, एप्पल उग गया, तो क्या करना है उसको वहां पे जिबेलिक एसिड के स्प्रे कर दो तो वो रुक जाएगा, मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। एब्सिसिक एसिड, स्टोमेटल क्लोजर, जिब्रेलिक एसिड जो होगा वो लीफ फॉल को बचाएगा, करवाएगा नहीं। ओके, साइटोकाइनिन दैट प्रमोट सेल डिवीजन, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ओके, दैट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। उसका काउंटर है ना, एंटागोनिस्टिक कौन है, साइटोकाइन, जो कि क्या करेगा, सॉरी, इथाइलिन साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू IAA, जो कि एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करेगा। और जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक ABA, ओके, दो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बिल्कुल। The term used for permanent cell that have re-obtained meristematic property to perform cell division, है ना। परमानेंट सेल जो कि फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को गेन कर लिए सेल डिवीजन के लिए, उसको क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो परमानेंट में हुआ डिफरेंशिएशन, और फिर जो परमानेंट एक बार हो चुका था वो फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। मतलब प्राइमरी परमानेंट से जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बनने की समय आई तो उस समय हमने बोला प्रोसेस का नाम दिया डी डिफरेंशिएशन। और उसके बाद जब जो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से जब सेकेंडरी परमानेंट बनने का समय आएगा, दैट इज नोन एज री डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन, फिर डी डिफरेंशिएशन, फिर री, ऐसे डी पहले आता है फिर आर बाद में आता है, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन पहले आएगा फिर आर री डिफरेंशिएशन। द थाइलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज, द थाइलॉइड बॉडी इज नोन एज प्लाज्मोडियम, है ना। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं, जहां पे स्पोर जो होते हैं वो बनते हैं, और जो स्पोर होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट से। सो प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट का एग्जांपल नहीं है, यूग्लिना तो है, ग्लोन्यूलैक्स है। और हमने बोला बताओ जरा इसमें से कौन सा प्रोटोजोआ का मेंबर नहीं है, प्रोटिस्टा का मेंबर नहीं है। तो ई कोलाई इज अ member of bacteria. The fungi which are used to produce the product which is also the first stable product of TCA cycle, ठीक है। TCA cycle का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड बनाता है एस्परजिलस नाइगर, और एस्परजिलस जो होता है वो मेंबर होता है एस्कोमाइसिटीज का। ACP न्यूयॉर्क में भागा, एस्परजिलस क्लेविसेप्ट न्यूरोस्पोरा, है ना, मोरेल्स बफेल्स, है ना, तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। द बैक्टीरियल जीनोम कंसिस्ट ऑफ, है ना, DNA विदाउट हिस्टोन, वहां पे पॉलीअमीन्स पाए जाते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर। इनिशिएशन कोडॉन AUG जो कि मिथिनोन को कोड करेगा, GUG कभी कभी वेलिन को, सॉरी कभी कभी ये भी स्टार्ट करने से काम करता है जो कि वेलिन को कोड करता है। स्टॉप कोडॉन UAA UAG UGA, ठीक है। ओके, मिथ्योनिन जो होगा AUG, मिथ्योनिन AUG, बिल्कुल मिथ्योनिन AUG, है ना। एलानिन यार सब तीनों सही है तो ये गलत होगा ना, बिल्कुल। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट ऑन mRNA। ट्रांसलेशन किसका होता है, mRNA का। हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली
प्रूव डीएनए टू बी अ जेनेटिक मटेरियल, सॉरी, है ना, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फॉलोड इन दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो इन्फेक्शन होगा, फिर ब्लेंडिंग, पहले आपस में पास आएंगे, फिर मिक्स हो जाएंगे, है ना, फिर उसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा, तब तो दूर दूर हो जाएंगे ऊपर नीचे। पहले मिक्स हो चुके पूरे पूरे मिक्स करेंगे, है ना, पहले तो जो बैक्टीरियोफेज है वो आएगा, इन्फेक्ट कर जाएगा, फिर जो ब्लेंडिंग होगी दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, है ना, फिर ब्लेंडिंग होगी, दोनों आपस में मिक्स होंगे, है ना, आपस में जो उसका जेनेटिक मटेरियल को डालेगा, अगर वो क्या हुआ तो, अगर वहाँ पे रिएक्टिव, है ना, रेडियो लेबल्ड वहाँ पे अगर डीएनए मिला तो वो अंदर जाएगा, तो ब्लेंडिंग होगी, आपस में वो मिक्स हो जाएंगे, फिर उसको हटाने के लिए सुपरनेटेंट को, और जो नीचे में हमारे पास जो मेन पार्ट है उसको रखने के लिए तो सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा बाद में, ठीक है सर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बाद में, क्योंकि सुपरनेटेंट बाद में देखते हैं, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगेशन बाद में, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, क्लेमाइडोमोनास जूस्पोर यस, पेनिसिलिन, कोनिडिया यस, हाइड्रा, गेम्यूल्स, गेम्यूल्स जो होते हैं, गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय सिलेंट्रेट्स, जो गेम्यूल्स होते हैं वो सिलेंट्रेट बनाते हैं, और हाइड्रा इज द मेंबर ऑफ, सॉरी, जेम्यूल्स जो होते हैं यार वो स्पॉन्जेस बनाते हैं, और हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेटा का मेंबर है, सो डज नॉट फॉर्म जेम्यूल्स। जेम्यूल्स को और क्या बोलते हैं, इंटरनल बड। टू विच ऑफ द फॉलोइंग part of the flower the proximal मतलब पास वाला of the filament of the stamen is attached, जो फिलामेंट होता है स्टेमन उसका जो proximal in होता है वो थैलेमस से अटैच होता है, मदर एक्सिस के पास होता है, ठीक है। मास ऑफ द सेल एनक्लोज्ड विदिन द इंटेगुमेंट इज इन, सॉरी, मास ऑफ द सेल एनक्लोज्ड विदिन द इंटेगुमेंट इन द ओव्यूल इज कॉल्ड एज, व्हाट इज ओव्यूल, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंट भी होगा, मेगास्पोरेंजियम भी होगा, और मेगास्पोरेंजियम कौन है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक प्लस इंटेगुमेंट प्लस न्यूसेलस इज कॉल्ड एज ओव्यूल, तो हमारे पास न्यूसेलस आ जाएगा। Which of the following is correct about the post fertilization event in flowering plant? Post मतलब बाद में, and a development of embryo before endosperm, एनसीईआरटी लिखती है सर, हमको क्या बोलती है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes embryo development, तो एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो जो होगा वो खाना खाएगा, खाना किसको खाएगा, एंडोस्पर्म को खाएगा, खाना ही नहीं बना तो वो कैसे जिएगा, तो एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर एम्ब्रियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके, pollen grain in some plant remain viable for months, okay, tapetum yes, सही है बिल्कुल, पहला वाला tapetum knowledge developing pollen yes, vegetative cell is larger than generative cell yes, okay, PEN is produced by the fusion of two polar nuclei, और वहां गया मेल गैमेट खा गया क्या, तो मेल गैमेट भी होगा, साथ में इसने बोला दो कैसे भी फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट सो एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन, और वेलेस्नेरिया में तो पानी से होगा, और ये जिया में देखा दूसरा ऑप्शन में तो विंड से होगा, और जोस्टेरा वाटर हाइड्रोफिली, यहाँ पे एपी हाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया में, और जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली, वेलिस्नेरिया में है ना हाइपोहाइड्रोफिली पानी के ऊपर, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया पानी के ऊपर, हैप्पी हाइड्रोफिली है ना, फीमेल में स्टॉक होता है, जो कि लंबा ऊपर जाता है, याद रखना, फीमेल में स्टॉक होता है, ओके। और हमने बोला यक्का, फाइकस, साल्विया, यक्का, प्रोनुबा मॉथ, ओके, फाइकस वास्प कौन सा, ब्लास्टोफिगा, और साल्विया में लीवर मैकेनिज्म। Choose the correct option with regard to the statement A and B. Lactic acid bacteria are responsible for converting milk to curd. Yes, लैब जो होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैब क्रिएट एसिडिक मीडियम नेसेसरी टू कोगुलेट एंड फुल्ली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। बड़ा जरा बात कर गौर कीजिएगा, यहाँ फुल्ली नहीं होगा, पार्शली होगा, एनसीईआरटी बोलती है पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, तभी तो जो कियाजिन प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट किया तभी तो वो थोड़ा सा कोगुलेट होगा, गाढ़ा हो गया, तो ये सही है, बी गलत है सर। मेंडल सेलेक्टेड 12 की 14 है सर, 7 देखो 7 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज इस्तेमाल नहीं की थी, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज इस्तेमाल की थी। अब कंफ्यूज होते हैं लोग तो कैसे क्लियर किया जाए। 14 ट्रू ब्रीडिंग मतलब येलो या फिर राउंड सीड चाहिए, है ना, तो राउंड सीड एक हो गया, रिंकल सीड एक हो गया, ऐसे ही येलो सीड एक हो गया, ग्रीन सीड एक हो गया, ऐसे 14 हमारे पास मिलेंगे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस वाज हिज एक्सपेरिमेंट had a large spelling size, thus greater
credibility to the data he collected. Yes. यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स. यस, सही है, सही बोल रहा है मेंटल सक्सेस के बारे में. ओके, कंसिडर्ड मैनी कैरेक्टर एट अ टाइम. या गलत है सर, कंसिडर एक ही, दो या फिर एक को कैरेक्टर को एक समय पर, या इसलिए सक्सेस मिला. रिजल्ट आर कंफर्म ऑन द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टेस्ट प्लांट, है ना. रिजल्ट आर कंफर्म. बिल्कुल, मेरे को फोर्थ में कंफ्यूजन था, मैंने देखा यार मेरे पास तो सारा फोर्थ वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने बोला चलो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना. तो हमने बोला 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जीनोम कंसिस्ट ऑफ, है ना, इसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. हाँ बिल्कुल, तो 3 होंगे ऑटोसोम, क्योंकि हमारे जैसे होता है XY XX होता है इसमें भी, ठीक है. तो 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एलोसोम. बिल्कुल, 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एलोसोम, ये सही आएगा. Genotype of male plant is capital T and genotype of female plant is small t. What would be the genotype of endosperm? एंडोस्पर्म में जो जीनोटाइप होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई मतलब फीमेल बॉडी. फीमेल बॉडी में तो फीमेल का जरा देखेंगे, एक टी, एक पोलर न्यूक्लियाई में, एक छोटा सा टी और पोलर न्यूक्लियाई में, तो जो छोटा टी और एक मेल गैमेट में होगा एक बड़ा टी, तो एक बड़ा टी और 2 छोटा टी हो जाएगा हमारे पास. With respect to ABO blood group, there are 4 major blood type because this group is determined by 3 allele, है ना. 3 allele all of which are codominant. सारे जो होते हैं codominant होते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, पीछे चलता हूँ मैं. 3 allele out of which 2 are codominant and 3rd recessive. ये वो सर सही है सर, क्योंकि 2 codominant होंगे, A दिखा बी दिखा, दोनों दिखा देंगे, लेकिन ओ को एक्सप्रेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओ ही होना चाहिए, है ना, तभी वो एक्सप्रेस होगा, मतलब वो रेसेसिव है. Which one of the following symbol and its representation used in human pedigree analysis is correct? It is consanguineous mating or mating between close relative. और रिलेटिव क्लोज रिलेटिव क्या बोल रहा हूँ. बायोरिएक्टर हैव फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, यस. ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम, यस. पीएच कंट्रोल सिस्टम, यार कंट्रोल सब करेंगे. विच द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ PCR, RT-PCR कोरोना वायरस की डिटेक्शन के लिए, सॉरी कोरोना वायरस की टेस्ट के लिए RT-PCR. तो यहाँ पे PCR बोला है, डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस. यस, वायरस की कंसंट्रेशन. एलाइजा फेल हो जाने पे हम PCR का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि एलाइजा बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन और दोनों के बीच के, है ना. और लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, बिल्कुल सही है. पहला स्टेटमेंट, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन जीन इन द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, बिल्कुल. म्यूटेशन को भी इससे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. मेरे को लगता है कि हमारे पास जो सेगमेंट होगा ना, उसको ले लेंगे और उसको फिर रेप्लिकेट करेंगे, फिर टेस्टिंग चेक कर लेंगे, है ना, ऐसे कर सकते हैं शायद. ठीक है, शायद क्या. एप्लीकेशन ऑफ द डिजायर्ड DNA सेगमेंट, एप्लीकेशन ऑफ द डिजायर्ड DNA सेगमेंट, एप्लीकेशन नहीं बोला, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड DNA सेगमेंट, ये सही है सर. डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजन, ये नहीं कर सकता, इसलिए तो हमने बोला है इसको बनाना पड़ेगा. ह्यूमुलिन इज ह्यूमन इंसुलिन नॉट नेचुरल इंसुलिन. ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड E. coli, यस, है ना. बीट और एक बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन थी वो ईस्ट में बनाई गई थी, है ना, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से. ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड बाय पेनक्रियास. ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज पेनक्रियास गलत है, केमिकली सिंथेसाइज इंसुलिन गलत है. हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड? देयर आर 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स, दुनिया में 30 है और हमारे देश में 12 हैं. सेलेक्ट द मिसमैच, इट्स एलाइजा टेस्ट, यस. फाइलेरियसिस वुचिनेरिया कॉजेटिव एजेंट है, बिल्कुल. डायग्नोसिस के लिए एलाइजा करते हैं डेट्स में, और फाइलेरियसिस में वुचिनेरिया कॉजेटिव एजेंट है. मलेरिया एनोफिलस मस्किटो इज नॉट अ कॉजेटिव एजेंट, इट इज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट, जिसको वेक्टर बोलते हैं. ये कॉजेटिव एजेंट तो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना. तो रिंग वॉर्म, ड्राई स्किन रिलेशन ऑन स्किन सिम्टम्स है, सही है.
ओके, तो सेलेक्ट नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट मीन्स करेक्ट, डिप्लॉयड इन स्टेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय, डिप्लॉयड इन स्टेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय, सेलेक्ट नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, डिप्लॉयड इन स्टेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, क्यों, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो ये गलत हो गया। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कंटेन रिकॉम्बिनेशन एंजाइम सही है। इन एनाफेज टू सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर, नो, क्रोमैटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, इनका सेपरेशन होता है। इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव, सही, तो हमको पूछा है नॉट इनकरेक्ट मीन्स करेक्ट, तो 3 और 2 और 4 सही है अपना। ये पूछना चाहते थे इनकरेक्ट पूछना चाहते थे या फिर नॉट करेक्ट पूछना चाहते थे, है ना, तो कोई बात नहीं, चलो। अब मैं एक क्वेश्चन छोड़ा था यार, उसको बनाना भूल गया। ओहो ये गलत हो गया यार। स्टेमिनोड प्रोड्यूस, यार मैंने नॉट पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो स्टेमिनोड डू नॉट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, स्टेमिनोड जो होते हैं वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करते, दे आर स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन। बता मोला, हर बार तो नाटक नहीं चले, बता एक आंसर कहाँ है? नहीं जान सकता कहाँ ले बना सकते, ये मिले ये तो कहाँ और आंसर आने क्वेश्चन है, आखिरी में ही काय नहीं आया आखिरी में, मैं 3 का कर रहा है ना, स्किप का करते रे, मैंने यहाँ से मैं बनाया नहीं, इसने ला भी जा। स्टेमिनोड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, स्टेमिनोड स्टेराइल स्टेमिन है, तो कहाँ से पोलन ग्रेन बनाएंगे यार। मैंने सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द फ्लावर आफ्टर ओपनिंग, यार मैंने सोचा कि वो पहले ही इसको जरा एक बार ऑब्जर्वेशन दें। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड कंडीशन, यार यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है यार, नॉट करेक्ट बोला है, देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, दोनों सही है हमारा, मतलब अपना अपना आंसर सही है जरा। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द फ्लावर आफ्टर ओपनिंग, बिफोर ओपनिंग होगा ना, तो यहाँ पे ए और सी जो होंगे वो दोनों सही होंगे, ठीक है ना। तो करेक्शन कोई बात नहीं, होती गलतियाँ, इंसान तो गलतियों का पुतला, गलतियाँ होती है सर। तो 2 गलतियाँ थी कहाँ पे, ऑप्शन में, और एक छोड़े थे हम। ओहो जल्दी में गलती किया यार। ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, अपने को टिक करना था सी, हमने कर दिया बी, ए को करेक्ट देख लिया, बी का इनकरेक्ट देखा, बी आर इनकरेक्ट, तो ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, है ना। ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट,
ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। तो 4 हो गई क्या? एक छोड़ा तो एक होना चाहिए और। छोड़ा था वो कौन सा है? जो छोड़ा था वो कौन सा है? ये चलो देख लिया जाए। 3 करेक्ट, 3 करेक्ट है, मतलब है ना। क्या पूछा है हमसे? करेक्ट। गुड ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, यस। यूवी रेडिएशन हैविंग अ लोअर wavelength than UVB. UV radiation having a lower wavelength than UVB is almost completely absorbed by the Earth atmosphere. UV radiation having a lower wavelength than UVB is almost completely absorbed by the Earth atmosphere. UVB causes snow blindness and cataract. ये गलत होना चाहिए। और 4 dB is a unit to measure the thickness of ozone. Yes. Good ozone is formed in the stratosphere and it acts as a shield absorbing UV ray coming from the sun. UV radiation having a lower wavelength than UVB are almost completely absorbed by the Earth atmosphere. Given that the ozone layer is intact, UVB cause inflammation of the cornea called snow blindness and cataract. The thickness of ozone in a column of air from the ground to the top of the ozone is measured in terms of Dobson unit. ओके हमने बोला सर डीबी मतलब डेसिबल होता है, और डेसिबल में गलत था। यहाँ पे डेसिबल होती है साउंड को मेजर करने के लिए, साउंड की लाउडनेस को, एंड डीबी इज नोन टू बी नोन एज डेसिबल एंड इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ अकोस्टिक ऑफ इज लाउडनेस को मेजर करने के लिए डेसिबल डीबी इस्तेमाल करते हैं। और हमने बोला थिकनेस ऑफ ओजोन को मेजर करने के लिए डीयू डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तीनों मेरा गलत था, सॉरी। तो गुड ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर सही है। यूवी रेडिएशन हैविंग अ लोअर वेवलेंथ देन यूवीबी इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, यस। जो कि यूवीसी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूवीबी जो होता है वो कैटरैक्ट, स्नो ब्लाइंडनेस कस कर देता है, मतलब अपने आंखों को खराब करेगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। और डीबी इज द यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन, गलत। डीबी नहीं, डी यू, इसको ध्यान देने का जल्दी में। डी यू डीबी दिखता है, डी यू डीबी दिखता है तो नहीं दिखना चाहिए। तो डी यू जो होगा वो डेप्सन यूनिट जो कि मेजर करेंगे ओजोन के थिकनेस, और डीबी जो कि डेसिबल जो कि लाउडनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए।